nor is the thousand men of Wazir Khan. Fateh Singh is my name and I would live by it. Good morning everyone. Today we are here to conduct the morning assembly on the topic Shaheed Divas. In this world, it is impossible to ignore the sacrifice and responsibilities of these three people, father, mother and guru, the one who has guided us on the right path. But how can we forget that Char Sahibzade sacrificed their lives for truth and justice? Whole world salute their supreme sacrifice. Four Sahibzade were the sons of 10th Guru of Sikhs, Guru Gobind Singh Ji. Our nation has young heroes in the form of Char Sahibzade who laid down their lives against injustice. On the occasion of Shahidi Divas of Char Sahibzade, let us know the story of these children who braved the most difficult circumstances and made history. Let's pay our homage to the heroes and pray to the Almighty to instill the feeling of sacrifice and strength into our life. So join your hands and close your eyes. Let's pray. Warrior, poet, philosopher and the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji is one of the most revered figures of Indian history. He bravely fought many battles to prevent the destruction of religious values. His sons Char Sahibzade's story, struggle, sacrifices and thoughts continue to inspire millions of Indians. Next, I would like to invite Jasprit Didi to say some quote by Guru Gobind Singh Ji. Everyone, today I am here to present you all one teaching of Guru Gobind Singh Ji. Consider the man who meditates on God day and night as his image between God and his servant. There is no dissimilarity. Recognize this to be true. Thank you. प्रभात देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो I repeat देह शिवा वर मोहे है शुभ कर मन ते कब हूँ ना डरो अरसों जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो धन्यवाद. Good morning everyone. The meaning of the thought of these powerful lines were written by Guru Gobind Singh Ji, which means that Almighty must give me a bond to do good deeds. One must never fear and stand victorious with full determination. Yes, निश्चय कर अपनी जीत करो. Thank you. Everyone, today's amazing fact is in the war of Chaukor Sahib, 40 Sikh warriors fight against 10 lakh Mughal warriors. Thank you everyone. Have a nice day. श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के लाडले साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जिनकी आयु 7 साल थी और बाबा फतेह सिंह जिनकी आयु केवल 5 साल थी, उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने के बजाय मौत को चुना, इसलिए उन्हें दीवार में जिंदा चिल्ला दिया गया. आज उसी दृश्य को उजागर करते हुए मैं आपके समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ.
दे वाहिगुरू जपते, मौत दा सानू खौफ ना कोई, जालिम नू वंगार दे, धर्म साडा कोई बदल नहीं सकदा, सूबे नू ललकार दे। बच्चियां दी गल सुन के सूबा गुस्से दे विच आया, कंजूसी होर उसारो अपना हुक्म सुनाया। जद गल गर्दन तक पुजी, सूबा फिर आजमांदा, जे बचना ते मुसलमान बन जाओ। आखिरी बार दोहरांदा, दशमेश पिता दे पुत्तर हां, साहिबजादे फरमांदे, चांद तो वध है सिक्खी प्यारी, गज के जगारा बुलांदे। चांद तो वध है सिक्खी प्यारी, गज के जगारा बुलांदे। बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आदमियों के साथ भरा हुआ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने परिवार को बलिदान करके सिक्खी की स्थापना की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जब सरसा नदी पार करते समय माता गुजरी जी और साहिबजादे अलग हुए थे, तब उन्हें रास्ते में गंगू ब्राह्मण मिल गया, जो किसी समय महल की सेवा करता था। वे उस पर विश्वास करके उसके घर चले गए, पर गंगू ने लालच में आकर साहिबजादों और माता गुजरी जी को वजीर खान के हवाले कर दिया। वजीर खान ने उन्हें ठंडा बुर्ज में कैद कर दिया। उस ठिठुरती ठंड में कपड़े का एक टुकड़ा तक ना दिया। तब एक रसोई मोती मेहरा जी ने साहिबजादों को दूध पिलाकर उनकी सेवा की। वजीर खान ने सबके सामने साहिबजादों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, पर साहिबजादे अपने धर्म में अटल रहे। इसके बदले में वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। यह माता गुजरी जी से भी सहन नहीं कर पाया और माता गुजरी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। साहिबजादों की कुर्बानी कैसे कोई भुलाएगा, दशमेश पिता के मुर्शिद का ऋण कैसे कोई चुकाएगा, इतिहास इन्हें दिल से कैसे निकाल पाएगा। जब भी बात होगी सुरमाओं की, तो सबसे ऊपर नाम साहिबजादों का आएगा, सबसे ऊपर नाम साहिबजादों का आएगा। जो बोले सोनिहार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह फतेह फतेह। धन्यवाद। जी माहवारी चौथे आवारे सरबंस दानिया वे दिन कौन वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Good morning everyone. Today we are here to explain the great shaheedis of the family of Guru Gobind Singh जी। ये बात उस समय की है जब औरंगजेब का आतंक पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो रोज 1.25 मन जिन्हें उतार के खाना खाता था। पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था। औरंगजेब ऐसे करते करते कश्मीरी पंडितों के पास पहुंचा और उन्हें कहा कि अपना धर्म बदलो। कश्मीरी पंडित अपनी दुविधा लेके सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे और बोला कि आप हमें अपनी शरण मिलें और हमें बचाएं, हमें अपना धर्म बदलना नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि इस काम के लिए किसी महान व्यक्ति को शहीदी देनी पड़ेगी। तब 9 वर्ष की बाल अवस्था में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि पिताजी, आपसे ज्यादा महान कौन हो सकता है, आपको ही शहीदी देनी पड़ेगी। यह सुन के गुरु तेग बहादुर जी और 3 सिख दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुरु तेग बहादुर जी से पहले 3 सिखों की शहीदी दी गई। गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने पूछा कि अभी भी वक्त है, धर्म बदलो, हम तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी देंगे। लेकिन तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, मैं हाँ तेग परख लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगा। मैनू तेग बहादुर दा तकब मिलिया, मेरा कुछ नहीं सकदियां खो तेगा। मैं जमदिया तेगा दी शाम आनी, मेरे पिता ने पहनिया 2 तेगा। हुण वेखी आउंदे भविखे अंदर, मेरे पुत ने वाउणियां ओ तेगा। मेरे पुत दी तेग चो जो तेग निकलू, लखा लहूगी तेरियां खो तेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने ये शब्द औरंगजेब को उस समय कहे थे। औरंगजेब ने बोला था कि मैं 2 से 1 धर्म बना दूंगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय ये वचन किए थे, करूं खालसा पंथ तीसर प्रवेशा, जगह सिंह जोधे धरे नील पेशा।
कि मेरे पंथ में सिख जो सूरमे होंगे वो जंग लड़ेंगे, मुगलों को लोहे के चने चबवा देंगे और वो नीले बाणे पहन के जंग लड़ा करेंगे। मेरे सिख शस्त्रधारी होंगे। फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी हुई। उनकी शहीदी के बाद भाई जेता जी जो गुरु तेग बहादुर जी के सिख थे, वो उनका शीश लेके गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए। गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु तेग बहादुर जी का सिर दिया। महाराज ने बोला, आपको उधर कोई और सिख नहीं दिखा? भाई जेता जी ने बोला, मैं किसी सिख को पहचान ही नहीं पाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, अब ऐसे सिख बनाऊंगा लाखों में एक पहचाने जाएंगे। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के सिर का अंतिम संस्कार हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 की विसाखी को खालसा पंथ की सृजना की। महाराज ने 5 प्यारे बनाए, अमृत छकाया, सिंह सजाया। वहां से खालसा पंथ की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सी जंगें लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी जिंदगी में 14 जंगें लड़ी, जिनमें से सभी वो जीते और मुगलों के उन्होंने दांत खट्टे किए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर साहिब में थे। अनंतपुर साहिब में औरंगजेब ने अपने कुछ मुगलों और हिंदू सैनिकों को भेजा और गौ माता की झूठी कसम खिलवाई कि और गुरु जी को कहा कि आप किला खाली कर दो, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। गुरु जी ने रात को 12 बजे किला खाली किया। गुरु जी के साथ बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब थे। गुरु जी ने रात को किला खाली किया। उसके बाद गुरु जी जब किले से बाहर निकले सभी के साथ, तो उन पे पीछे से हमला कर दिया। उन पर धोखा किया, उनके साथ धोखा किया गया, उन पर हमला किया। सिख बहुत बहादुरी से लड़े, कुछ सिख शहीद भी हुए। उसके बाद गुरु जी सिरसा नदी के किनारे पहुंचे। नदी का बहाव उस समय बहुत तेज था। गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी, वो अलग हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी और उनके मामा जी, वो अलग हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह और साथ में उनके 140 सिख और थे, वो भी अलग हो गए। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर गए। चमकौर का किला वहां पर था, एक किला था, तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी रुके। महाराज ने वहां पर आसन लगाया। वहां पर ना महाराज के पास खाना था ना पानी था, सभी सिख भूखे सो रहे थे। 100 सिखों ने महाराज को छोड़ दिया। 100 सिखों ने बोला कि महाराज हमें अपना परिवार भी देखना है। वो 100 सिख महाराज को छोड़ के चले गए। महाराज के पास सिर्फ 40 सिख बचे थे, जिनमें उनके 2 बेटे भी साथ में थे। उसके बाद महाराज को पता लगता है कि मुगलों की फौज आ रही है। महाराज के पास 40 सिख थे और आगे से 10 लाख मुगल आ रहे थे। महाराज ने जंग लड़ा, 5-5 करके सिखों को भेजा। 15 सिख बचे थे। महाराज के बड़े बेटे गए बाबा अजीत सिंह जी। उन्होंने बोला कि पिताजी मैं भी अब जंग में जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बोला कि जा पुत्र तू लड़। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बड़े बेटे को अपने हाथों से तैयार किया और जंग में भेजा। वो जंग में लड़े। जो वहां पर उस समय का वहां पर जो लीडर था मुगलों का, उसने बोला ऐसा लग रहा है कि गुरु गोविंद सिंह खुद आ गए हैं जंग पे। उनका बड़ा बेटा इतनी बहादुरी से लड़ा था। उसके बाद जो उनके बड़े बेटे थे, उनकी छाती में 250 तीर बजे, उनको शहीद कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने ऊपर से जयकारे छोड़े, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। गुरु गोविंद सिंह महाराज का बड़ा बेटा शहीद हुआ। उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे थे बाबा जुझार सिंह, उनकी उम्र उस समय 13 साल की थी। बाबा जुझार सिंह ने बोला पिताजी बड़े भैया शहीद हो गए हैं, अब मैं भी जंग पे जाऊंगा। बाबा जुझार सिंह जी को गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला जा पुत्र जा, मैं भी देखूंगा कि मेरे सिखाए जंग के तरीके तेरे को अच्छे से याद है कि नहीं। आज तेरी जंग के तरीके मैं भी देखूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी छोटी तलवार दी उनको और जंग पे भेजा। बाबा जुझार सिंह जी लड़े और उस समय जंग को देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने एक शब्द उच्चारण किया था। महाराज ने उस शब्द में पूरी जंग का बयान किया है। वो शब्द कुछ इस प्रकार है, कागड़दन काती कटारी कड़ाकन, कागड़दन तीरंग तुपकन कड़ाकन, चागड़दन नागड़दन बागड़दन बाजे, गागड़दन गाजी महागाजे गाजे। महाराज ने इस शब्द का ये अर्थ है कि जो योद्धे हैं, जो जंग में जो लड़ रहे हैं महाराज के सिख, वो ऐसे लड़ रहे हैं मानो बिजली कड़क रही हो। वो इस प्रकार जंग में लड़ रहे हैं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के जो बेटे थे 13 साल की उम्र में, उनके पेट में 4 भाले बजे और वो भी शहीद हो गए। उसके बाद महाराज ने वहां पर भी खुशियों के जयकारे छोड़े।
गुरु गोविंद सिंह जी को 5 सिखों ने बोला कि महाराज आप ना किला खाली कर दो। महाराज ने बोला था कि मैं 5 सिखों, जहां पर मेरे 5 सिख होंगे मैं उनमें खुद निवास करूंगा, जो मेरे 5 सिख अमृत छके, जिन्होंने अमृत छका होगा। महाराज ने 5 सिखों का हुक्म माना। महाराज ने अपनी कलगी और शाही पोशाक भाई संगत सिंह जी को दी और उसके बाद महाराज रवाना हो गए। महाराज रात को 12 बजे निकले। महाराज ने जूते पहने हुए तो महाराज ने जूते उतार दिए। महाराज के भाई सिख भाई दया सिंह जी ने पूछा कि महाराज आपने जूते क्यों उतारे? महाराज ने बोला मेरे सिख जो लड़े हैं उनकी पगें खुल के उनके बाल बिखरे हुए हैं, तो उनके बाल का अनादर ना, उनके बालों का अनादर ना हो, इसलिए मैं जूते खोल के जा रहा हूँ। महाराज गए तो भाई दया सिंह जी जो थे वो महाराज के बेटों के ऊपर ना कपड़ा डालने लगे थे। तो महाराज ने बोला अगर कपड़ा डालना है तो सभी पे डाल, मेरे ये दो मेरे को प्यारे नहीं है, मेरे को सारे प्यारे हैं। उसके बाद महाराज आगे को रवाना हुए। महाराज माछीवाड़े के जंगल में अकेले थे। महाराज ने एक पुराना चोला पहना हुआ था, ना महाराज के पास घोड़ा था, ना बाज था, ना तख्त थे, ना ताज था। महाराज अकेले थे। महाराज माछीवाड़े के जंगल में रुके। महाराज के पास सिर्फ एक तलवार थी उस समय। उसके बाद पता लगता है कि छोटे साहिबजादों को भी औरंगजेब ने पकड़ लिया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे और उनकी माता को औरंगजेब ने पकड़वा दिया था। उसके बाद उनको ठंडे बुर्ज में रखा गया। ठंडा बुर्ज वो जगह है जहां पर सर्दियों में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। वहां पर उस समय गुरु गोविंद सिंह जी की माता जो थे उनकी उम्र 75 ईयर्स थी और उनके जो छोटे बेटे थे, एक की उम्र 5 साल थी और एक की उम्र 7 साल थी। उनको ना खाना दिया गया ना पानी दिया गया, उनको भूखे उधर सुलाया गया इतनी ठंड में। उसके बाद गुरुजी के जो छोटे बेटे थे उनको वजीर खान ने बुलाया, जो वहां का जनरल था, जो उस एरिया का जो जनरल था, हेड था। उसने अपने दरबार में बुलाया छोटे साहिबजादों को। उसने छोटे साहिबजादों के लिए छोटा दरवाजा खोला कि वो झुक के आएंगे मेरे आगे। पर छोटे साहिबजादों ने सबसे पहले अपने जूते बाहर निकाले, सबसे पहले उसको अपने जूते दिखाए कि तू हमारे जूतों के बराबर है। फिर उसके बाद छोटे साहिबजादे अंदर गए तो वहां पर एक काजी था, उसने बोला कि बादशाह सलामत के आगे झुक के सलाम करो। साहिबजादों ने बोला हमारा सिर सिर्फ गुरु के आगे झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। उसके बाद साहिबजादों को वजीर खान ने लालच दिए और पूछा कि इस्लाम कबूल करो। छोटे साहिबजादों ने बोला तेरे इस्लाम के सिर में 100 जूती। उस समय ये जवाब देना जरूरी था। वैसे सिख धर्म किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, पर उस समय अगर कोई भी होता तो ये जवाब ही देता। तो छोटे साहिबजादों ने ये बोला तो और वजीर खान को बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने बोला कि काजी साहब उनके लिए कोई सजा बताओ। तो काजी ने बोला इस्लाम में छोटे बच्चों का खून बहाने के लिए कोई सजा नहीं है, छोटे बच्चों का खून बहाना नहीं है इस्लाम में। वजीर खान ने बोला खून बहाना नहीं है तो इनको दीवारों में जिंदा चिनवा दो। उनको जिंदा दीवारों में चिनवाया गया। जब दीवार की आखिरी ईंट लगा रहे थे तो काजी ने दोबारा पूछा कि इस्लाम कबूल करो। उन्होंने बोला हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद आखिरी ईंट लगाई। जब वो वापस जाने लगे दीवार गिर गई। साहिबजादे उसमें जिंदा थे। उसके बाद वजीर खान ने बोला कि इनका गला काट दो। साहिबजादों के जो एयर पाइप थी वो काट दी गई, उनकी सांस ब्लॉक हुई और वो शहीदी पा गए। उसके बाद उनको दोबारा दीवार में चिनवाया गया और फिर उसके बाद पता लगा कि जो साहिबजादों के जो दादी थे उन्होंने भी शरीर त्याग दिया था। फिर उसके बाद साहिबजादों के जो दादी थे और साहिबजादों के शव को जंगल में फेंक दिया गया। ऐसा बोलते हैं कि उनके शव की रखवाली शेरों ने खुद की थी। उसके बाद जो दीवान टोडरमल थे, दीवान टोडरमल ने वजीर खान को कहा कि मेरे को साहिबजादे और माता जी का अंतिम संस्कार करने दे। वजीर खान ने बोला अंतिम संस्कार में करने नहीं दूंगा। तो दीवान टोडरमल ने विनती की और वजीर खान ने बोला कि अंतिम संस्कार के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी सोने की मोहरें बिछा दे। तो पहले वो सोने की मोहरें लेटा के बिछा रहे थे। उसके बाद वजीर खान ने बोला खड़ी सोने की मोहरें बिछा। दीवान टोडरमल जी ने अपना घर बेच दिया, अपनी पत्नी के जेवरात बेच दिए और उन्होंने माता जी और साहिबजादों का अंतिम संस्कार करवाया। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक मुस्लिम आया। उसने बोला कि महाराज जी आपके छोटे बेटों और आपकी माता जी को शहीद कर दिया गया है। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में एक तीर था। महाराज तीर से घास को साइड में कर रहे थे।
तो महाराज ने घास को जड़ से उखाड़ के बोला कि इनको जड़ से उखाड़ देंगे। उसके बाद महाराज नांदेड़ गए, महाराष्ट्र में गए नांदेड़। वहां पर महाराज जी रहे और महाराज ने वहां पर छावनी लगाई, वहां पर महाराज रुके। महाराज जी के ऊपर हमला भी करवाया गया था। तो महाराज ने वहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर को सजाया, वहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर को सिख बनाया, माधोदास से बंदा सिंह बनाया। महाराज ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को बोला कि ये ले 5 तीर, 5 सिख और तेरे साथ 500 सिखों की और फौज होगी, तू जाके पंजाब में जाके लड़, फतेह कर। फिर उसके बाद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर पंजाब को गए। पंजाब में उन्होंने वजीर खां के साथ जंग लड़ी, वजीर खां को मार दिया। वजीर खां को मारने के बाद बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को दिल्ली ले गए। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, उनका 3 साल का बेटा और 500 सिख उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले जाने के बाद हर रोज 100 सिखों के गले काट रहे थे। वो हर सिख को बोल रहे थे इस्लाम कबूल करो। सिखों ने बोला हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। हर रोज 100 सिखों के गले काट रहे थे। जब छठा दिन आया, छठे दिन बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को दिल्ली में बुलाया, दिल्ली में बाजार में बिठाया और उनको बोला कि बादशाह का हुक्म हुआ है कि तू अपने बेटे को खुद मारेगा। बाबा बंदा सिंह जी ने बोला सिख कभी भी बच्चों पे, औरतों पे और बुजुर्गों पे वार नहीं करते। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बोला कि ये काम आपका है, हमारा नहीं। जो जल्लाद था उसने बाबा बंदा सिंह बहादुर के बेटे का दिल निकाला, दिल बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डाला। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर की आंखें निकाली गई। फिर उसके बाद उनके शरीर पे जो मांस लगा था, उनके शरीर पे जो स्किन थी, उनकी जो स्किन को कैंचियों से काट के पूरे दिल्ली शहर में बिखेरा गया था। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर के बेटे की शहीदी होने लगी थी ना, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने बेटे को पूछा कि पुत्र डर तो नहीं लग रहा क्या, कि तेरे को डर तो नहीं लग रहा? तो बाबा बंदा सिंह बहादुर के 3 साल के बेटे ने बोला डर की होता है, डर तो सिखा से होता ही नहीं। डर तो उस 3 साल के बेटे ने बोला था कि डर सिखों से खुद डरता है, हमें डर से डरने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने उसके कान में बोला वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उसके कान में फतेह बजाई। उनका बेटा शहीद हुआ, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर शहीद हुए। फिर औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी पे हमला करवाया। गुरु गोविंद सिंह जी रात को अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, तो 2 मुस्लिम आए। गुरु गोविंद सिंह जी की छाती पे खंजर से वार किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक मुस्लिम को तो उधर ही मार दिया था और एक मुस्लिम जो था वो सिखों के हाथ लग गया, सिखों ने उसको मार दिया। उसके बाद एक अंग्रेज डॉक्टर था उस समय, तो उस अंग्रेज डॉक्टर ने गुरु गोविंद सिंह जी को स्टेसिस लगाया और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी को उसने बोला था कि आप शस्त्र नहीं उठा सकते, आपको आराम करना पड़ेगा, अभी आपको भारी चीज नहीं उठानी है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो कमान थी, उनकी जो बो थी, बो एंड एरो होता है, उनकी जो बो थी वो 250 किलो, जो 250 किलो वेट उठाने में जितनी ताकत लगती है उतनी ताकत उस कमान को चलाने में लगती थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वो कमान की जो डोरी थी वो चढ़ाई और गुरु गोविंद सिंह जी के जो 9 टांके लगाए थे उनके पेट में, तो वो 9 टांके खुल गए। उस इंसिडेंट के बाद उस जगह का नाम नांदेड़ पड़ा, मतलब 9 उधेड़, मतलब 9 टांके उधड़ गए थे। उस इंसिडेंट के बाद उस जगह का नाम नांदेड़ पड़ा। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिखों को बोला कि सिखों अब हमारा जाने का टाइम आ गया है, अब हमें ज्योति ज्योत समाना पड़ेगा। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे जो अब प्रेजेंट गुरु हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उनको गुरुता गद्दी दी। सिख धर्म के 3 प्राचीन ग्रंथ हैं जिनको हम गुरु मानते हैं। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आज श्री दसम ग्रंथ साहिब और आज श्री सतलोक ग्रंथ साहिब, ये 3 ग्रंथ हैं जिनको हम गुरु मानते हैं। इन 3 ग्रंथों को गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुता गद्दी दी, इनको गुरु बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय ये वचन किए थे, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मेरे खोज है खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आकी रहना कोई, ख्वार हुए सा मिलेंगे बचे शरण जो हुए। उठ गई सभा मलेश की कर कूड़ा पासार, डंका बाजे फतेह का नेक लंके अवतार। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय ये वचन किए थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। महाराज ने सिखों को हुक्म किया कि सिखों
शस्त्र और शास्त्र की विद्या को कभी मत छोड़ना। दुनिया की कोई कौम आपको हरा नहीं पाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समाए। उसके बाद सिखों को महाराज जो उपदेश दिया था सिखों ने उसको फॉलो किया। अब तक हम उसको ही फॉलो करते आ रहे हैं। और अब हम शहीदी दिवस जो मना रहे हैं उनकी फैमिली जो शहीद हुई थी तो वो अब हम मना रहे हैं। आपको भी हमने बताया तो अब हमें बहुत खुशी है। शैला मैम को भी थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो अब मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। मैं जो पुरातन जंगी जकारा है जो निहंग सिंह जाते थे उस जकारे के साथ मैं समाप्ति करूंगा। चढ़िया गुरु गोविंद सिंह लाए धर्म नगारा मारे नरंगा तो राजन खिचे अहंकारा धरती पै गई हाल चला सब छोटे कारबार ऐसे धुंध कलेश में खपे सब संसारा राजे शाह जितने सब इशारा सच्चे सतगुरु बाजो को नहीं पै काटन हारा मीनिए मसंदिए नड़िए थुड़ी मार की सवा उठा के तुमका दे असलो भाजड़ा बाय का गुरसिंगा रचे जकारे गिलाउंगे गुरांगे प्यारे घर के जकारे गिलावे निहाल हो जावे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी दे चरणों ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਗੁਰਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਹਰਮਦਾਨ ਹਰਦਵਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। बच्चे आने पर हिम्मत न हारी बोले सोने
ਜਾਣਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ ਸਮਝੀ ਨਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ ਸਮਝੀ ਨਾ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲਾਲ ਸੂਬਿਆ I have sacrificed my 4 sons. So what if 4 are dead when thousands more are alive? Thank you for listening us patiently. Have a great day.